کراچی کو پاکستان کا محفوظ ترین شہر بنانے کی تیاریاں سیف سٹی منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے لیے کر دیے گئے۔ ابتدا میں کراچی کا ریڈ زون اور شارع فیصل کو سیف بنایا جائے گا۔ ایئرپورٹ کوریڈور کے علاقوں کو بھی کور کیا جائے گا۔ مزید اس رپورٹ میں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے 4 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ رقم منصوبے کے پہلے فیز کے لیے جاری کی گئی ہے۔ چہرے کی شناخت کے لیے 1300 کیمرے لگائے جائیں گے۔ کیمرے نائٹ ویژن ہوں گے۔ نمبر پلیٹس کی بھی نشاندہی کی جا سکے گی۔ نمبر پلیٹس کی ریکارڈنگ کے ساتھ تصاویر بھی لی جا سکے گی۔ پیٹرولنگ کے لیے 23 اسمارٹ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ کنٹرول روم کی عمارت بھی مکمل کی جائے گی۔ ابتدا میں کراچی کا ریڈ زون اور شارع فیصل کو سیف بنایا جائے گا۔ ایئرپورٹ کوریڈور کے علاقوں کو بھی کور کیا جائے گا۔ ملزمان کا ڈیٹا سیف سٹی پروجیکٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ قیدیوں کا ڈیٹا تصویر کے ساتھ پروجیکٹ سے منسلک کرنے میں 2.5 سال لگیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی آصف اعجاز شیخ کو پروجیکٹ کا DDO مقرر کر دیا گیا۔ پروجیکٹ کے پہلے فیز کے لیے 6 ارب 621 کروڑ روپے پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں۔ کراچی میں بھی محسن سپیڈ نادرا میگا سینٹر میں دن رات 24 گھنٹے سروس۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر صفورہ میں بھی نادرا میگا سینٹر فعال ہو گیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے 20 کاؤنٹرز قائم، انتظار گاہ میں 250 نشستیں لگائی گئی ہیں۔ روزانہ 700 شہریوں سے قومی شناختی کارڈ کی تجدید، نئے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے درخواستیں وصول کی جا سکیں گی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خبر، صفورہ چرنگی کے قریب نادرا سینٹر کا افتتاح نادرا کے خصوصی افراد سے کرا دیا گیا۔ آج نادرا کا پہلا دن افتتاح ہوا ہے۔ یہ صفورہ پہ نئی NRC کھلی ہے، بگ NRC، سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سے کرایا گیا ہے نا افتتاح، جو ہے کوئی منسٹر کوئی نہیں، سب کچھ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، ہمارے لیے بھی انشاءاللہ۔ صفورہ چرنگی کے قریب واقع نادرا کے نئے مرکز میں شہریوں کی سہولت کے لیے 250 نشستیں نصب کی گئی ہیں۔ بیک وقت 20 کاؤنٹرز کے ذریعے 700 کے قریب شہریوں کو روزانہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ بیگ NRC میں قومی شناختی کارڈ کی تجدید، نئے شناختی کارڈ کے لیے درخواستوں کی وصولی، FRC اور بے فارم سمیت تمام کام ہو سکیں گے۔ نیا نادرا مرکز صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک 2 شفٹوں میں 16 گھنٹے فعال رہے گا۔ شہریوں کی جانب سے نئے نادرا سینٹر پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ میں یہ کہوں گا سیکٹر تو اچھا کھلا ہے، پر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی غریب بندہ آ رہا ہے، وہ 7,500 ٹوکن لے رہا ہے، 7,500 کا لے رہا ہے نارمل، اس کو گھنٹہ بٹھا رہے ہیں، اور جو ایکسکلوزیو جو ارجنٹ والا ہے ان کو جلدی ٹوکن دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ سینٹر تو اچھا کھلا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی 6 بجے سے آئے ہوئے ہیں، 5 والی سیریز چل نہیں رہی۔ یہ نادرا کا اچھا ایک جو ہے سینٹر ہے۔ پچھلے سینٹر میں تو باہر بندہ انتظار کرتا تھا گرمی میں، ادھر جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے یعنی بندوں کو۔ نادرا حکام کے مطابق صفورہ کے پرانے سینٹر میں ٹوکن کی گنجائش یومیہ 100 سے 150 کے درمیان تھی۔ نئے سینٹر کے ذریعے فی شفٹ 9 کاؤنٹر سے سہولت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یومیہ 700 سے زائد ٹوکنز جاری کیے جائیں گے، جس کو سال کے اختتام تک 1500 ٹوکن تک بڑھا دیا جائے گا۔ کیمرامین شاہزیب کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ اور میٹرک امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ نے طلبہ کو دوہرے امتحان میں ڈال دیا۔ ہجرت کالونی کے DMC جمشید علی خان گرلز اینڈ بوائز سیکنڈری اسکول میں امتحان کے دوران لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ طلبہ نے اسمبلی ہال میں بیٹھ کر پرچہ حل کیا۔ ایمہ خان کی رپورٹ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ کے لیے عذاب بن گئی۔ ہجرت کالونی کے DMC گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول میں بھی دوران امتحان بجلی غائب رہی۔ طلبہ نے شدید گرمی میں پرچہ دیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ناصر خاور کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ الیکٹرک کو درخواست کی ہے، لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ میم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 9:30 بجے اسٹارٹ ہوتی ہے اور ٹل 9:30 بجے تک۔ جب ایگزام شروع ہونا اس سے پہلے ہم نے کے الیکٹرک حکام کو، جو علاقائی مینیجر ہے، وہاں ہم نے ایک لیٹر آفیشلی جو ہے وہ سبمٹ کرا دیا تھا کہ دوران امتحان کے لیے آپ اپنا شیڈیول چینج کر دیں اور بچوں کو جو ہے وہ گرمی نہ لگے اور لائٹ جو ہے وہ آئے، مگر اس کے باوجود جو ہے ہمیں اس تکلیف کا اور بچوں کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میٹرک بورڈ کی نااہلی کے باعث سینٹر میں اضافی طلبہ بھی بھیجے گئے، جنہیں اسکول انتظامیہ نے اسمبلی ہال میں بٹھا کر پرچہ حل کرایا۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ میئر کراچی نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ڈیزیزز میں بلیو کوٹ نگہداشت وارڈ کا افتتاح کر دیا۔
कहते हैं ये वार्ड इमरजेंसी केसेस को देखने के लिए बनाया गया है। नर्सिंग स्कूल को भी ऑपरेशनल किया जा रहा है, जिससे 130 बच्चे और बच्चियां मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। बल्दी अज़मा कराची के अस्पतालों को जदीद सहूलियत से आरास्ता करने का मिशन। मेयारी इलाज की फराहमी के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। मेयर कराची ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीज फेडरल बी एरिया में ब्लू कोड निगहदाश्त वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, ये वार्ड इमरजेंसी केसेस को देखने के लिए बनाया गया है। बल्दी अज़मा कराची के मातहत 14 अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ मौजूद केट लैब को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। इमरजेंसी केसेस हैं, उनको डील करने के लिए एक ब्लू कोड जगह हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने क्यूबिकल्स तैयार किए हैं, जहां पर इमरजेंसी पेशेंट्स को इमीडिएट लाइफ सपोर्ट देने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो कि एक मिनी आईसीयू के तर्ज पर बनाया गया है। बैरिस्टर मुर्तुजा वहाब ने कहा, माजी में ये सड़क टूट का शिकार थी। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इसे दुरुस्त कराया। तमाम इदारे इस शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये आपने सड़क देखी होगी, माजी में सड़क का क्या हाल था, तबाह थी, जो कि राशिद मिनाज रोड यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होती है और ऑल द वे शारा नूर जहाँ तक इवेंचुअली जाती है। आज आप देख सकते हैं कि वो नाला जो कि तबाह था, टूटा हुआ था, उस नाले को किसी और सियासी जमात ने नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दिया। मेयर कराची ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। खुर्रम शेर जमान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके वजीर आजम ने कराची को 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था, जो वफा नहीं किया। तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमे जामियात बोर्ड के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के 17 ग्रेड के 87 लेक्चरर समेत दीगर कैडर के 104 तदरीसी गैर तदरीसी अमले को 16 और 18 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी। बात करेंगे आज़ाद नहरियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा जामियात बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 87 लेक्चरर हैं जिनको एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर यानी 18 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई, जिसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ग्रेड में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी के 16 जो लेक्चर को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई हैं, जबकि पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के 1 से 17 ग्रेड के लेक्चर, जबकि आरएसी टेक्नोलॉजी के 3 17 ग्रेड के लेक्चर को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ मिल गई, जबकि बायोमेडिकल के 1 और सेक्रेटरी के 5 लेक्चर को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ मिल गई, जबकि इंग्लिश आर्ट हैंड व टाइपिंग के 27 लेक्चर को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ मिल गई हैं, जबकि कॉमर्स के 10 लेक्चरर को 18 ग्रेड तरक्कियाँ दे दी गई हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के 1 लेक्चरर और रिलेटेड स्टडीज के 7 लेक्चर को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई हैं, जबकि 17 ग्रेड के 12 सीनियर इंस्ट्रक्टर जो महकमा जामियात हैं उनको भी तरक्कियाँ मिल गई हैं। इसके अलावा 17 ग्रेड के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर को भी तरक्कियाँ दे दी गई। इस हवाले से महकमा जामियात बोर्ड ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रेलवे इंतजामिया की गफलत, कराची सिटी स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस में एयर कंडीशन गैर फाल, टिकटिंग स्टाफ और मुसाफिरों का गर्मी से बुरा हाल हो गया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे इंतजामिया की गफलत और नाअहली, दफातर भी सहूलियात से महरूम। कराची सिटी स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में एयर कंडीशन देखने के तो हैं, पर चलने के नहीं। रेलवे स्टाफ और बुकिंग के लिए आने वाले शहरी गर्मी से बेहाल। टिकट के लिए लाइन में लगे शहरी कहते हैं रेलवे मुनाफे में जाने के बावजूद भी अपने ही अमले को बेहतर सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही। कोई इंतजाम ही नहीं है, आधा घंटा लाइन में, 1 घंटा लाइन में लगना होता है, पसीने से बुरा हाल है। लेकिन ये 2-2, 3-3 एसी हैं, फ़ैन भी बंद हैं, फ़ैन भी नहीं चल रहे हैं, तो रेलवे इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए। एसी वगैरह सब दिखावे के नाम के हैं, कोई इंतज़ाम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदारा अब तो रेलवे बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, अब तो कुछ लोगों के लिए कुछ बैठने का करो। यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं वो भी परेशान हैं और यहाँ का अमला है वो खुद बेचारा परेशान है, और यहाँ तो ख़वातीन हैं वो लेडीज़ किस तरह बैठी हुई हैं गर्मी के अंदर, पीछे एसी लगा हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा, डमी है। शहरियों ने कहा कि सख्त गर्मी में एसी चलाए जाएं ताकि मुसाफिर और टिकटिंग स्टाफ अपना काम बेहतर अंदाज में कर सकें। कैमरामैन हैदर अली के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकेंगे। एक सिग्नल पर खिलाफ वर्जी करने वाला अगले सिग्नल पर पकड़ा जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक ने हिदायत जारी कर दी। मसरूफ कारोबारी इलाकों में डबल पार्किंग पर भी एक्शन की हिदायत कर दी गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट।
ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने का तरीका निकाल लिया। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने ट्रैफिक सिग्नल्स और डबल पार्किंग पर वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला अगले सिग्नल पर पकड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सिग्नल तोड़ने वाले की इत्तला अगले सिग्नल पर देगी। ट्रैफिक पुलिस को एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मौसर राब्ते का हुक्म भी दे दिया। मसरूफ कारोबारी इलाकों में डबल पार्किंग पर भी एक्शन की हिदायत। डीआईजी ट्रैफिक ने दो टोक अल्फाज में कहा, सदर और तारिक रोड पर डबल पार्किंग हरगिज ना होने दें। एम ए जिना रोड पर भी डबल पार्किंग नहीं होनी चाहिए। गैर कानूनी पार्किंग कराने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को भरपूर कार्रवाई का हुक्म। फैंसी नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। डीआईजी ट्रैफिक का कहना था कि महकमा एक्साइज से मिलकर फैंसी नंबर प्लेट पर एक्शन लिया जाए। जाली सरकारी नंबर प्लेट पर भी भरपूर कार्रवाई करें। डीआईजी ट्रैफिक का पुलिस को अपने इलाकों में हादसात की वजह मालूम करने का भी हुक्म। जहां सड़क खराब हो वहां बैरियर गेट लगाकर निशानदही करें। हादसात से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को सरकारी कराने की भी हिदायत कर दी। पुलिस को हिदायत दी गई है कि हादसात का सबब बनने वाली ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मिनी बसें और ट्रक जुर्म के मुर्तकिब हों तो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें। ट्रैफिक पुलिस इखलाक व किरदार भी आवाम के साथ बेहतर करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स 75,115 की नई बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट के लिए एक और नया संगे मील 75,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में आगाज से तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट में 584 पॉइंट्स के इजाफे से 75,155 की नई बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड हुआ। नई बुलंद तरीन सतह कायम होने के बाद मार्केट में मुनाफे का प्रेशर देखा गया और दिन भर मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 132 पॉइंट्स के इजाफे से 74,663 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट ब्रोकर शहरियार भट्ट का कहना है, मईशत के लिए इकदामात और कंपनियों के मुस्बत नताइज से सरमायाकार मुतारिक रहे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए और हम देख रहे हैं वॉल्यूम साइड भी बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। फिर नए आईपीओ आ रहे हैं जो काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में थे, रुके हुए थे, अब आना शुरू हो गए। रेगुलेटर्स ने काफ़ी अच्छे इकदाम लिए हैं, जिसके बाद अब आप ई साइट पे भी आप इलेक्ट्रॉनिकली फील कर सकते हैं फिर और बहुत जल्द इस चीज़ों को मुकम्मल कर सकते हैं। आईपीओ फील कर सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें शो कर रही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद है और उनको लगता है अगर हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात सही सिमत पे आगे बढ़ाए तो मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकती है। कारोबार के दौरान 381 कंपनियों के 57 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 25 अरब रुपए से जायद की रही। मार्केट में 147 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 213 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। तेज़गाम एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने तेज़गाम एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा कर दिया। 20 मई से तेज़गाम के मुसाफिर नई डाइनिंग कार की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इससे कबल बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में भी प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार लगाई गई थी, जिसकी कामयाबी पर नई डाइनिंग कार का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। CEO रेलवे आमिर बलोच ने लाहौर में डाइनिंग कार का इफ्तिताह किया। डाइनिंग कार में 40 से ज़ायद खाने मौजूद होंगे। कार के मेन्यू में सूप, बर्गर, पिज़्ज़ा, कड़ाही भी शामिल होंगे। डाइनिंग कार में एक वक्त में 35 मुसाफिर खाना खा सकेंगे। अगले चंद हफ्तों में खैबर मेल और अलामा इकबाल एक्सप्रेस में भी डाइनिंग कार लगा दी जाएगी। तलबा में खुद एतमादी और मार्केटिंग की सलाहियत पैदा करने का मिशन द किड्स सिटी कैंपस में कॉलेज ऑफ मीडिया आर्ट्स की जानिब से ब्रांड एक्टिविटी का इनेकाद किया गया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। को बनाना और फिर मार्केटिंग करना, इन्हीं सलाहियतों के गुण सिखाने का अज़म द किड्स सिटी कैंपस कॉलेज ऑफ मीडिया आर्ट्स डिपार्टमेंट की शानदार काविश। ब्रांड सिटी एक्टिविटी प्रोग्राम का इनेकाद तुलबा को खुलकर अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया। तुलबा व तलबात ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए पेश किए। डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ मीडिया आर्ट्स हेड डॉक्टर जमशेद भट्ट का कहना था, सेकेंड ईयर की तलबा व तलबात को प्रोजेक्ट दिया गया है और इनका टास्क था कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके इसकी मार्केटिंग करनी है। उसके अंदर ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इनको हर सेमेस्टर के अंदर एक एक्टिविटी दी जाती है कि आपने अपना एक ब्रांड डेवलप करना है और वो लॉन्च करना है, जिसके आपने प्री मार्केटिंग फेज़ होते हैं, फिर आपके पास मार्केटिंग फेज़ होते हैं, फिर पोस्ट मार्केटिंग फेज़ होते हैं। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। तलबा व तलबात ने फूड प्रोडक्ट, एस्ट्रोलॉजी कंपनी, वर्टिकल प्लांट्स और आइस टी के प्रोडक्ट्स बनाकर इसकी प्रमोशन की। हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्चून कुकी है।
फॉर्चून कुकी एक वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है कि आप कुकी तोड़ते हो उसमें से फॉर्चून निकलता है. सो वी हैव दीज बॉक्सेस विद अस जिसमें हम लोगों ने फॉर्चून चिट्स डाली हुई हैं. हमारा ब्रांड है आइस टी का, हमारा नाम है ग्रूवी आइस टी. हम लोगों ने उसके अंदर फ़िलहाल 2 फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, लेमन एंड पीच का. हमारे 5 ग्रुप मेंबर्स थे, सो हम लोगों ने काम डिवाइड करके किया उसमें, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर का, मतलब बाकी सारी डिज़ाइनिंग का काम, और लाइक एक लीडर था दैट वाज लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग. डिफरेंट स्टोन्स जो है ना वो है, जिसमें कि टाइगर आई आता है, उसके बाद है जेम स्टोन है, उसके अलावा हकीक है, फिरोज़ा है. तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है ना वो ब्रेसलेट्स हैं. तलबा व तलबात का कहना था यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते रहें तो हमारी निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को उजागर करने से सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी. कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21. मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के तालबात ने अपने मुनफरद प्रोजेक्ट पेश कर दिए. मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट. शहर कायद के ज़हीन तलबा के कारनामे. मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तलबात ने अपने प्रोजेक्ट से देखने वालों के दिल मोह लिए. किसी ने मलबूसात को नए अंदाज से पेश किया तो आर्ट के ऐसे नमूने बनाए कि देखने वाले अश अश कर उठे. चिड़िया घर की हतनी नूर जहाँ की याद में बेडरूम कलेक्शन तैयार करने वाली आमना अफजल ने कहा कि हतनी नूर जहाँ के जिस्म पर मुख्तलिफ टेक्सचर देखते हुए कलेक्शन को तैयार किया. कुशन पर ऑरेंज कलर इसलिए इस्तेमाल किया कि हथनी का घर ऑरेंज था. मेरी जो थीम है वो नूरजहाँ एलिफेंट जो था कराची ज़ू में, जो पिछले साल जिसकी डेथ हो गई थी, मैंने उसको अपनी कलेक्शन के थ्रू एक ट्रिब्यूट पे किया है. मैं चाहती थी कि इवन दो वो कम, उसकी ज़िंदगी बहुत कम थी, सिर्फ 17 साल वो जी थी, मैं चाह रही थी कि लोग उसको याद रखें. तो उस वजह से मैंने अपनी कनेक्शन का नाम भी नूरे जहाँ ही रखा ताकि लोगों को पता हो कि मैंने किस चीज़ के बारे में काम किया है. दीगर तलबात ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में यूं इजहार ख्याल किया. मेरा जो थीम है उसका नाम है बोगनविला. आपने ये फूल देखा होगा, ये फूल हमें हर जगह घरों के बाहर हैंग होता हुआ नज़र आता है. ये वाहिद फूल है जो हमारे कराची शहर में एक कलर और ब्यूटी ऐड कर रहा है. मैंने इन सारे कपड़ों को जमा किया है हाला सिंध से, और इसमें बेसिकली सिंध के बहुत सारे वो हैं कपड़े फेमस, जो कि हैं अजरक, सूसी और रली का एक एलिमेंट दिया गया है मेरे कपड़ों में, और इसमें कांता स्टिचेस यूज़ हुए हुए हैं. जबकि मैं लोगों को जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि हर चीज़ जो यूज़लेस लगती है वो बेसिकली यूज़लेस होती ही नहीं है अनटिल आपको उसको यूज़ करने का तरीका ना आता हो. रेलगाड़ी कुली के यूनिफॉर्म को तैयार करने वाली तुलबा बोली, मेरा सफ़र ट्रेन में ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम पटरी रखा है. मैं कह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ. और जैसे पुराने ज़माने में रेल्स होते थे, ट्रंक्स होते थे, तो मैंने उन्हीं को फ्यूजन की नए ज़माने की ट्रॉलीज़ के साथ और अपना जो है नया डिज़ाइन बनाया. तालबात के हाथों बने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देखकर शाहिकीन ने उनकी मेहनत को खूब सराहा, जिस पर तालबात की खुशी दीदनी थी. कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना.